Now viewers, in fact, focusing on the breaking developments that we are learning, a bag of currency notes was recovered from the seat number 222 in the Rajya Sabha by security officials yesterday. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar confirmed that the notes were found after a routine anti-sabotage check. This in fact is now leading to the escalation of responses by the opposition, as well as many parliamentarians in the Rajya Sabha has also spoken on this. The seat is allotted to Congress MP Abhishek Manu Singhvi. While being in a question right now, Singhvi has reacted to the allegation, stating that he was unaware of the discovery, explaining that he only carries a 500 rupee note when visiting the house. He further clarified his brief presence in the house and said that he left after being present in the canteen. Meanwhile, Abhishek Singhvi is also reacting on the allegations. Let's listen in. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30, I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30, I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about this. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया. मैं तो अचंभित हूँ. मैंने कभी ना सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं. रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया. अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया. 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था. 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी. मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो. जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक होती है बैठने. हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति. My colleague Kanika Katiyar joins me live on the broadcast. Kanika, now Abhishek Manu Singhvi has reacted on these allegations, while Union Affairs Parliamentary Minister Kiren Rijiju has also spoken on this issue, saying that currency notes were found in Rajya Sabha, and Congress is defending, saying that they were only carrying a 500 rupee note, while the wads of notes found on the seat remains a very concerning issue. What is the entire incident? Put this in perspective, as the BJP is now demanding a probe on it. देखिए सिमरन, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की जो सीट है 222 सीट नंबर, वहां पे कल जो है जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था, बल्कि जब सिक्योरिटी ब्रीच जो चेकिंग होती है हर बार शाम को पार्लियामेंट के पहले, वो हुआ तो वहां पे नोटों की गड्डी जो है वो बरामद हुई, जिसके बाद जो है
सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो उनकी सीट पे जो पैसा बरामद हुआ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि जेपी नड्डा हो, किरण रिजिजू हो या फिर इसके अलावा तमाम जो नेता है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग करी, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी सीट पर पैसा बरामद हुआ है, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनका ये बयान आया है कि वो कल पार्लियामेंट जिस दौरान गए थे उस दौरान वो पार्लियामेंट के भीतर भी नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पार्लियामेंट जब पहुंचे थे तो उन्होंने अयोध्या के जो सांसद है अब उनके साथ लंच किया था और लंच करने के बाद वो जो है पार्लियामेंट से 137 के अराउंड निकल चुके थे, बल्कि वो हाउस में केवल 2 से 3 मिनट बैठे हैं, उसके बाद जो है वो कैंटीन में थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो केवल 500 का नोट लेके जो है वो हाउस में गए थे, उसके अलावा उनके पास कोई कैश जो है वो नहीं था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का ये भी कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें जो है वो पाई गई है या इस तरह के जो आरोप है वो लगे हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को छुपाने की और कहीं ना कोशिश कर रही है, लेकिन अब बीजेपी के तमाम जो सांसद है वो कांग्रेस पार्टी के हमलावर है और खासतौर पे अभिषेक मनु सिंघवी पे हमलावर है और इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो ऑपोजिशन की पार्टीज है और खासतौर पे कांग्रेस के जो एमपीज है वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है किस तरह का आरोप जो है वो नहीं लगाना चाहिए। और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, अगर पैसा बरामद हुआ है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी मांग करी है कि पार्लियामेंट में अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो खास तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं ये एक प्लान्ड साजिश जो है वो बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आप एक दूसरे पे हमलावर है, तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और अब जो है इस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद फैसला होगा कि आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। All right, Kanika, thank you for adding these details and giving us, in fact, the latest inputs as far as the controversy and the kind of contention on the wads of notes being found at the Parliament, and the Jagdeep Dhankar, the Vice President, is ordering a probe in it as well. Now, as per the sources, the meeting to discuss the cabinet portfolio allocation is